जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलध तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to our chief guest, respectable teacher, my dear students, and all the members of Akliyati Fala Education Center. Today we have gathered here to celebrate the spirit of freedom, unity, and patriotism on this glorious Independence Day. India is a country of various religion, caste, culture, and traditions. We are a country of unity in diversity. Independence Day brings all Indians, irrespective of their caste, culture, and creed, together. Today, we commemorate the sacrifices of our freedom fighters, the architects of our nation's independence, who demand of a free and prosperous India. After years of struggle and sacrifice by countless freedom fighters, India gained its independence on 15 August 1947. It's a day to remember the sacrifices of freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Tipu Sultan, Begum Hazrat Mahal, Rani Lakshmi Bai, and many more who sacrifices their lives for us to live freely in our country. This day marks the beginning of New India. Today we are celebrating 79th Independence Day. Let us honor the mighty warriors who made us the proudest of all human beings and the most powerful of all nations. Let us unfurl the tricolor and let it wave proudly in the sky.
Let's take a moment to remember the countless heroes who made their day possible. May the glory of this day be your inspiration for tomorrow. Now let's begin this auspicious occasion. I would like to call Insha and Jasmine to deliver their speech on Maulana Abul Kalam Azad. Assalamu alaikum everyone. My name is Insha. My friend name is Jasmine. Here give me a speech on the great Indian fair fighter मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था. बचपन से ही मौलाना अब्दुल कलाम और पढ़ाई में तेज थे. उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में कोई भी भाषा में जानते थे. वो आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े और भारत छोड़े आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए. वे कई बार जेल भी गए, लेकिन देश का आज़ादी के कभी पीछे नहीं हटे. आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षक मंत्री उन्होंने और कई विद्यालयों के निगाह रखी. वो मानते हैं कि देश की असली ताकत शिक्षक में है. मौलाना आज़ाद का जीवन में हमें सिखाता है कि शिक्षक एकता और देश भक्ति से हम किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं. आइए हम भी इनके देशों पर चलकर देश का नाम रोशन करेंगे. जय हिंद, जय भारत. नारंगी, सफेद और हरा हम देखते हैं जो हमारी आजादी का प्रतीक है. बहादुर नायक हम सब के लिए लड़े, मजबूती से शान से खड़े रहे. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है. सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. Patriotism means not just waving the flag, but helping to strengthen and make our country strong. आज का यह समारोह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है. हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाना है. इस आयोजन के माध्यम से हम देशभक्ति की भावना को मजबूत करें और सभी कार्यक्रमों का आनंद लें. आइए हम सब मिलकर इस दिन को यादगार बनाएं. Now I want to welcome Kashfi for her शायरी. Give her a huge round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ना तन से प्यार है, ना धन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है. अनेकता में एकता हमारी भारत इस देश की शान है, इसलिए हमारा भारत महान है. चलो फिर याद करें कि कैसे दूसरों ने हमें बर्बाद किया, अपनों की एकता ने कैसे इस देश को आज़ाद किया. थैंक यू. Now I want to welcome Afreen for her patriotic song on "ए देश मेरे." Please give her a huge round of applause. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के. तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बागे है मेरा, मैं तेरा परिंदा. है अर्ज़ दीवाने की जहाँ बोर सुहान देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो. कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना.
जिक्र में शामिल तेरा नाम हो ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से ये मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुकूमत दे दे, मंजूर है हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो वधशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। Now I would like to call Muzammil sir for a patriotic song. Give him a huge round of applause. तालियों में कंजूसी कैसा, ताली तो बजाओ, जोर से बजाओ सर को चीयर करो। सर आइए, सर आइए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, ओ जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों,
अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत शुक्रिया। सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। Now I would like to call the founder of Aqliyati Fal Education Center, Arman sir, to address and motivate every children and the members who are present here and increase the feeling of patriotism. Give him a huge round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डाइस पे मौजूद जो कहकशा की शक्ल में, ये कह लेने दीजिए कि आज कहकशा की शक्ल में जो लोग मौजूद हैं, ये इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं इस तंजीम से हमारी वाबस्तगी है। आपका यहाँ बैठना उस वक्त तक गर्मी है, तपिश जाते हैं, गैस जो है एग्जॉस्ट है, इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आप और हम सब मिल करके इस तंजीम को अपने पसीने से सींच रहे हैं, इसलिए कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो मेरे बच्चों की हौसला अफजाई हो रही, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और कोई वजह दूसरी कोई वजह नहीं। और दूसरी ये बात कि इस तंजीम को सींचने का असल मकसद ये है कि जब ये तंजीम सींचा जाएगा तो एक बेहतरीन जो हम लोगों ने पौधा लगाया, अभी जो पौधे की शक्ल से ना देखते हैं घर में कि कोई पौधा लगाते हैं तो वो अपने गमले में जो है छोटा सा रहता है, फिर वो घना होता है, तो एक इसकी दरख्त जो है बनेगी इंशाअल्लाह ताला, और इस दरख्त के साये में ये पूरे बच्चे जो है फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी ये बात कि आज जिस मौके पे हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं, आज का मौका यौम आज़ादी का मौका है। यौम आज़ादी को बताना इन नन्हे नस्लों को इसलिए ज़रूरी है कि आज कहीं ना कहीं NCERT हमारे हाथों से चल गया है, हमारे पास NCERT की तारीख नहीं बची। दूसरी ये बात कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये बात हम नहीं बता रहे हैं, जबकि मौलाना वली रहमानी साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कभी कि हमारी स्कूल तालीम गाहें अगर अपनी होगी तो हमारी तारीख अपनी होगी, और अगर हम अपनी तारीख को अपनी नस्लों को नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं तारीख ख़त्म हो जाएगी, और सरकारी जो हमारे स्कूल हैं वो वही पढ़ाएंगे जो वो चाहते हैं, दूसरी चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। ये बात हम नहीं बोल रहे बल्कि मौलाना वली रहमानी साहब ने कहा था, और ये बात सच हो रही है। उसी तारीख के रोशनी में एक बात इन बच्चों को बता करके रुखसत लूँगा कि जंग आज़ादी, या ये कह लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई कब शुरू हुई, तो तारीख के अंदर एक बात इन बच्चों को, या शायद हम में से जो लोग बैठे हैं उनको भी ना पता हो, या पता हो तो अच्छी बात, कि तारीख लिखी गई कि 1857 में जंग आज़ादी की शुरुआत हुई। हालांकि ये बात सच नहीं है। आज़ादी की लड़ाई 1757 में शुरू हुई, जो कि कलकत्ता से नवाब सिराजुद्दौला के जो है उनके नाना ने जो है शुरुआत की, और वो जंग आज़ादी हार गए थे, जिसके बाद से फिर मुसलसल चलती रही, और
जो है कलकत्ते से हो करके वो जो है लखनऊ पहुंचते हुए फिर दिल्ली को पहुंची और दिल्ली से फिर बहादुर शाह जफर जो आप 1857 की तारीख को पढ़ते हैं। हकीकत में हम लोग 1857 से 100 साल पहले जंग आज़ादी की तारीख को शुरुआत कर चुके थे। अब इसी तारीख में अगर हम मुताला करते हैं यूपी की सरजमीन पे एक बहुत अजीम इदारा जो हमारा और आपका इदारा, जिसकी आगोश में ना जाने लाखों करोड़ों की तादाद में उलमाओ कराम ने जो है तालीम को हासिल किया और फिर पूरे हिंदुस्तान की जो है सरबराही की, उसी देवबंद की सरजमीन से एक या ये कह लीजिए एक ऐसा कायद निकला जिसको हम और आप मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम से जानते हैं। उनकी तारीख इतनी ज़्यादा है कि इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि माल्टा की जेलों के अंदर उनको कैद कर दिया गया और काला पानी की सजा हो गई। आपको इस तारीख से वाबस्तगी होनी चाहिए कि आज का मौजू हमारी तारीख को जानने का है। हम जो है सुनते हैं बच्चों की स्पीच और अपने बातों को अगर तारीख को ना जानेंगे तो शायद हमारा और आपका यहाँ पे जमा होना इस बात का कोई वजन नहीं रख पाएगी। दूसरी ये बात कि जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल के अंदर कैद हुए तो केस मुकदमा हुआ और फिर अंग्रेजी हुकूमत के सामने उनको बुलाया गया तो उनके सामने कहा गया कि आप जो फतवा जारी किए उसको वापस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने साथ कफन लेके आए हैं, कफन हो सकता है मेरे साथ कब्र में चल जाए, फतवा को हम वापस नहीं ले सकते, जंग आज़ादी होके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसी बगावत ने उलमाओ कराम की एक ऐसी बड़ी तादाद जो देवबंद से लेकर के लाहौर तक जिसकी जितनी सड़कों में दरख्तें आई हैं उन दरख्तों को तो हम गिन सकते हैं मगर उलमाए कराम के सरों को नहीं गिन सकते, उनको काट के लटका दिया गया। हमारी नस्लें इस बात को नहीं जानती, अफसोस की बात है। उसी मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने रेशमी रूमाल तहरीक चलाई जो बहुत ही जो है कारगर साबित हुई और रेशमी रूमाल की तहरीक ऐसी तहरीक बनी जिसको आज़ाद हिंदुस्तान के बाद उसकी तारीख को जानने का मौका मिला। दूसरी ये बात, फिर महात्मा गांधी का दौर आया, महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब देने वाले भी मौलाना हुसैन अहमद मदनी ही थे। तो हमारे उलमाए कराम ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क से वफादारी की, इस मुल्क की अक्सरियत अक़लियत और तमाम तरह की जितने भी रहने वाले वाबस्तगी जितने भी मजहब के लोग थे उन सबको रखा और उन्हीं के पोते ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक बात कहा था, उसको दोहरा के अपनी बात से रुखसत होऊंगा। उन्होंने कहा था कि हम इस मुल्क में बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। हमारे पास इस बात की दलील है कि हमारे पास ऑप्शन था कि हम जो है चले जाते, लिल्लाहियत के नाम पे एक मुल्क जो है बनाई गई थी मगर हम लोगों ने इसी मुल्क को चुना। और उन्होंने एक बात कहा था कि इसी गली के खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, ना आपके बुलाए आए हैं ना आपके निकाले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग खानाई के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप पूरी प्रोग्राम करने के बाद मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। Now our next performance is by Zareen, a speech on Razia Sultana. Welcome him with a big hand. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zareen Aftab. I study in class 10 in Aqliyati Falah Education Center. Today on the occasion of Independence Day. टॉपिक, आज हम सब यहाँ राष्ट्रभाषा के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह दिन हमें हमारे देश के वीरों और व्यक्तियों की याद दिलाता है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थी
राज्य सल्तनत का जन्म 1205 में हुआ था। उन्होंने 1236 से 1240 तक न्याय और ईमानदार से शासन किया। इस समय समाज के महिलाओं को आगे आने का मौका बहुत कम था, लेकिन राज्य सल्तनत ने यह साबित किया कि नारी पुरुष से कम नहीं है। आप आज के दिन सल्तनत जैसे महिलाओं के याद करने के उस प्रेरणा लेते हैं हम। थैंक यू। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य में जयती जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है। Now I would like to call Alia and Sana for their song. Please give her a big round of applause. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुँचूं जब जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम किया छान नहीं दूं, तुझ पे कोई गम किया छान नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान मुझ पे साध रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। थैंक यू। We walk together, we move together, we think together, we resolve together, and together we take this country forward. Now I would like to call Faz sir to deliver his speech. Please give him a big round of applause. Faz sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dear submissive associates, friends, and respectable, estimable, venerable, honorable, all the members of the Aqliyati Falah families, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान हुआ कि मैं यहाँ पे आया और बड़ी खुशी हुई कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। मैं उन चीज़ों पे थोड़ी रोशनी डालूँगा जिन वजूहात से जिन वजहों से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। कि आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, यानी आज ही का दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो इसमें जैसे कि अरमान साहब ने अभी बताया, हमारे उलमा इकराम की कुर्बानी के शेखुल महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल हिंद थे, उन्होंने कुर्बानी दी और उनके शागिर्द हुसैन अहमद मदनी, ये दोनों माल्टा की जेलों में कैद रहे कई सालों तक, 1-2 साल नहीं, और वहाँ भी मेहनत करते रहे। फ़िक्र यही थी कि कैसे हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। तो इतनी कुर्बानी दिया है इतने बड़े बड़े उलमाए किराम ने, जिनकी तारीख़ और जिनकी इंस्टीट्यूट में
पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं, जिसको आज देवबंद के नाम से जानते हैं। तो इन उलमाए कराम की बड़ी कुर्बानी रही है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। इन्होंने अपने माँ की कुर्बानी, अपने बीवी की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी, अपनी प्रॉपर्टीज़ की कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी दी। आप देखेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसा कि कहा इन्होंने, कि सारे दरख्तों पे उलमाए कराम का सर दिख रहा था और सारी ज़मीनों पे खून की खुशबू आ रही थी। इतने हमारे उलमाए कराम ने कुर्बानी दिया तो हिंदुस्तान को अपनाया, हिंदुस्तान को बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी, किस लिए उन्होंने कुर्बानी दी? हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने प्रॉपर्टीज़ की कुर्बानी दी, अपनी सब चीज़ों की कुर्बानी दी, तो हिंदुस्तान को बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ, और बल्कि सब लोग ये चाहते हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं, अक़लियती फ़लाह इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो आप एजुकेशन के बुनियाद पे, तालीम के बुनियाद पे, मकतब के बुनियाद पे आप अपनी चाहत की कुर्बानी, आप अपनी जज्बात की कुर्बानी, आप अपनी सोच की कुर्बानी, आप अपने वक्त की कुर्बानी देंगे। किस लिए? सिर्फ तालीम को हासिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इतिहास को रच देंगे, इतिहास बना देंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है, माशाल्लाह, तो आइए बैठे। तो आप लोग इधर मुतवज्जह हो जाए। तो इन लोगों ने कुर्बानी, सोच को कुर्बानी देंगे तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इतिहास को सिर्फ गया ज़िला को नहीं बदलेंगे, पूरे हिंदुस्तान को बदल देंगे। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप अपनी तालीम के बुनियाद पे आप अपनी हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। जिस तरीक़े से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, किस बुनियाद पे? तालीम की बुनियाद पे अपने जज्बात को, अपनी चाहत को, अपनी सोच को बदला और कुर्बानी दी, मेहनत दिया, दिन रात मेहनत किया, एम्पल ऑफ टाइम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपनी पढ़ाई, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बना करता है। तो फिर जो है उसके कुर्बानी को देखते हैं, अल्लाह ताला जो है कुर्बानी मांगते, लेते नहीं है, और उस कुर्बानी की वजह से पूरी दुनिया में उसके बरकत को, उसकी बरकत को खोल देते हैं। तो पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में आप देखेंगे मैनिट इंस्टीट्यूट, जिसको जो है मौलाना अबुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में जो है कई जगहों पे खोल दिया गया। खोला कि नहीं? पता कि ना, मैनिट जो है भोपाल में है मैनिट। और जितने भी इंस्टीट्यूट जो इंडियन इंस्टीट्यूट है और जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है, इन सब की जो है रोल और जिम्मेदारी किन्ने निभाया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे। जब अपनी चाहत की कुर्बानी देंगे, जब अपनी जज्बात की कुर्बानी देंगे, तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट नहीं, हज़ारों इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं। जो अभी के वक्त में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं हमारे जाकिर हुसैन ने अपनी जज्बात की कुर्बानी दी, अपनी चाहत की कुर्बानी दी, अपनी सोच की कुर्बानी दी, अपने इरादे को बदले, अपना प्लान किया, अपने डेस्टिनी को सिलेक्ट किया, अपने एक गोल को, डेस्टिनेशन को गेन करने के लिए उस पर मेहनत की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बना दिया और उनके ज़रिए से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट को कायम कर दिया, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी उनके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जिसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया है। अब सोच लें, इतनी कुर्बानी। तो आप लोग भी ये इरादा करें कि मैं अपनी सोच को, मैं अपनी चाहत को, मैं अपने जज्बात, पैशन को बदलूंगा और बदलूंगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी पूरे गया को बदल सकती हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह करेंगे ना। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बात, वो ये है कि आप अपनी मेहनत से पीछे ना आए। जिस तरीके से
आपकी अम्मी और आपके अब्बू, घर वाले, आपके पेरेंट्स सुबह सुबह उठाते हैं, बेटा तुम जाओ काम पे, बेटी तुम उठो और जाके बर्तन मांजो, ऐसा अगर कहते हैं आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, आपके अम्मी अब्बू, तो आप कहें कि नहीं अम्मी और नहीं अब्बू, मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है, मुझे तालीम को हासिल करने के लिए जाना है। और कहाँ जाना है? हमें मकतब जाना है, हमें इंस्टीट्यूट जाना है, हमें दुनिया के किसी भी फील्ड में ऐसा बाकी नहीं रहना है जहाँ हम वहाँ पहुँच न पाएं। आप देखें अभी के वक्त में, प्रेजेंट में, अभी एक लड़की ऑटो ड्राइवर की बेटी, ऑटो ड्राइवर, बात को गौर से सुने, एक ऑटो ड्राइवर की बेटी जो है आईएएस ऑफिसर बनी। महाराष्ट्र की ऑटो ड्राइवर की बेटी आईएएस ऑफिसर बनी, यूपीएससी क्रैक की। कब की? अपनी सोच को बदली, अपनी चाहत को बदली, अपनी जज्बात को बदली, अपने वक्त का कुर्बानी दी, अपने घर के कामों को थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा वक्त दी, तो आज वो आईएएस ऑफिसर बन गई। एक लड़का हमारे वक्त में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अंसार शेख, शायद आप लोग भी जानते हो, अंसार शेख जो एक पुणे का लड़का था, पुणे के किसी खेड़े यानी गांव में रहता था, वो लड़का, इतनी उसके फादर की सलाहियत नहीं थी कि उसकी पढ़ाई के लिए पैसा को इन्वेस्ट करें, उसके पढ़ाई के लिए। जैसे जिस तरीके से आप बाकी गली उठाकर देख लें, इकबाल नगर देख लें और पूरे पंचायतिया खड़ा मोरिया घाट देख लें, मोस्टली पेरेंट्स जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं हैं फाइनेंशियल एतबार से। तो वो बच्चा, तो आप ये सोचते हैं कि मैं अब कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं भी किसी काम में चला जाऊंगा, अभी मैं छोटा हूं, अभी मैं छोटी हूं, मैं पढ़ाई क्या करूंगा, मैं पढ़ाई क्या करूंगी और पढ़ाई करके होगा क्या। आप उन बच्चों को देखें जो अभी, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, अंसार शेख नाम का एक लड़का है, अपने पढ़ाई के लिए वो चला आया पुणे शहर में, और पुणे शहर में गांव से, जैसे ये चाकन बेला गांव है ना, वैसे ही चाकन से वो चला आया गया शहर में पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही वो गांव से पुणे शहर में पढ़ाई करने के लिए आया और वो काम करता रहा पढ़ाई के साथ, एज वेल एज वो IIT मुंबई है। जिस तरीके से ये सारे इंस्टीट्यूट जो इंडिया लेवल पे है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों पे, चूंकि हमारे अक़लियती फलाह के टीचर्स, फैकल्टीज और मेंबर्स बहुत डेडिकेशन के साथ, और जहाँ जहाँ गया में इंस्टीट्यूट्स है, वो सारे फैकल्टीज डेडिकेशंस के साथ आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे अक़लियती फलाह जो है ना पूरे इंडिया में हो जाएंगे, समझे। तो जब बच्चे निकलेंगे पढ़ाई से और यूपीएससी क्रैक करके कहाँ से आ रहे, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े भाई, तो मैं अक़लियती फलाह इंस्टीट्यूट से यूपीएससी क्रैक किया हूँ, मैं अक़लियती फलाह इंस्टीट्यूट से JEE क्रैक करके आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ, आज मैं जामिया मिलिया में हूँ, आज मैं मैनिट में हूँ। ये सारे कब होंगे? जब आपका सपोर्ट, यानी हमारे अक़लियती फलाह मेंबर्स एज वेल एज टीचर्स, फैकल्टीज, ये सारे डेडिकेशंस के साथ आपके ऊपर, आपके फ्यूचर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही आप बच्चे ये इरादा करें, इंशाअल्लाह मुझे बिला नागा, मैं विदाउट अब्सेंट के मैं इंस्टीट्यूट पढ़ाई करने के लिए आऊँगा और आऊँगी, ठीक है इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़, साथ साथ मैं एक और काम करूँगी जिसमें अल्लाह पाक हमारे जहन को शार्प बनाएंगे, शार्प माइंडर बनाएंगे। और इतना ही नहीं, हम इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के मल्टी मिलियनेयर और मल्टी बिलियनेयर पर्सन बनेंगे। और जब आपकी अम्मी और आपके अब्बू जब घर से भेजे किसी को, किसी के घर पे काम करने के लिए, किसी की दुकान पे जिम्मेदारी यानी मजदूरी करने के लिए, तो आप ये कहें कि आप अभी जो मुझसे 5,000 10,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रही हैं अम्मी, मैं अगर आप यही 5-10 हज़ार रुपया मेरे ऊपर पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करेंगी, तो मैं 1 लाख 2 लाख नहीं 10-10 लाख रुपए इंशाअल्लाह ताला आपके पास ला कर दूंगा। ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। आपकी तालीम के वजह से आप ऊंचे पोस्ट पे जा सकते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन ऊंचे पोस्ट पे जाने के लिए आपके ऊपर एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप दीन के साथ जुड़े रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके शार्प माइंडर बनाएंगे, आपके दिमाग को तेज़ बनाएंगे। वो ये करना है कि जब सुबह उठें तो मैं नमाज पढ़ लूँगा, फजर की नमाज 2 रकात पढ़ ली, कितना वक्त लगता है? 5 मिनट लगता है मुश्किल से। फैकल्टीज़ के लिए भी मैं
मेरा जो है गुजारिश है कि वो भी ये इरादा करें, जितने लोग यहाँ पे मेंबर्स हैं सब कोई कोशिश करें कि अपने शुरुआती काम को स्टार्ट करूँगा नमाज से। जब नमाज से आप शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मैं पूरी दुनिया पे रूल ओवर मुसलमान करेंगे, जिस तरीक़ा से पहले मुसलमान कर रहे थे और अभी किसी वजह से ये नीचे गिर गए हैं, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पे मुसलमान रूल ओवर करेंगे, हुकूमत करेंगे। सिर्फ क्या है, दो चीज़ पकड़ लें, एक तो है नमाज की पाबंदी कर लें और दूसरी पढ़ाई की पाबंदी कर लें। और पढ़ाई के लिए अपनी चाहत की कुर्बानी देनी ज़रूरी है, अपने दोस्त की कुर्बानी देनी ज़रूरी है। आप देखें बाकी गली में कितने बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हमें पढ़ाई से दूर करेंगे, लेकिन उन बच्चों को छोड़कर ये सोचना है कि अगर मेरा एक दोस्त थे, जब मैं पढ़ाई पटना में कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मेरे रूममेट थे। सुन रहे हैं बच्चों, आप सुन रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब मैं पटना पे पढ़ाई कर रहा था तो हमारे रूममेट थे, और वो रूममेट थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हुए थे हमारे साथ में, ठीक है। तो वो मैं जब उनसे कारगुजारी लिया तो उनने ये कहा कि मैं जब बच्चा था, और वो सरकारी टीचर भी थे, गवर्नमेंट टीचर भी थे, तो उन्होंने कहा फैज़, जब मैं अपने घर पे रहता था तो मेरे घर वाले सुबह सुबह मैं देखता था, मेरे माँ बाप, आपके यहाँ तो यहाँ शहर में खेती नहीं होती है, तो सुबह सुबह वो क्या करते थे, खेत में चले जाते थे हल चलाने के लिए और खेती करने के लिए। फार्मर थे, फार्मिंग करने के लिए चले जाते थे। तो मैं वहाँ जब फार्मिंग के लिए मैं भी खेत में जाता था, तो हमारे माँ बाप को मैं देखकर ये सोचता था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं किया तो आने वाले दिनों में मैं भी खेती करूँगा। मैं भी क्या करूँगा, खेती करूँगा। जिस तरीके से खेती करने वाली की कोई वैल्यू, इज्जत नहीं है, तो आने वाले दिनों में मेरी भी कोई पहचान नहीं होगी, मेरी भी कोई इज्जत नहीं होगी। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, और फिर पढ़ाई की है तो गवर्नमेंट टीचर बने, और फिर पटना में आके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आईएएस ऑफिसर बन सके। तो आप ये भी सोचें, आप सोचें कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पॉकेट में आप कलम नहीं रखेंगे और आप हाथ में कलम हाथ से नहीं चलाएंगे, तो आने वाले दिनों में आपके पॉकेट में सिफारिश पत्र होगी, आपके हाथों में बजाय कलम के टोटो रिक्शा का हैंडल होगा, आपके हाथों में बजाय कलम के, पेन्स के, आपके हाथों में कुदाल होगा, जिससे आप जो है किसी की ज़मीन को, किसी के मकान को बनाएंगे और टोटो ड्राइवर बनाएंगे, ये ड्राइवर इधर आओ, जिसकी आपकी कोई वैल्यू और अहमियत नहीं होगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं और दुनिया में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, और आप जब गली में जाएं तो लाल बत्ती के साथ बाकी गली में पंचायतिया खड़ा में एंट्री हो आपकी, और सारे लोग आपसे मुतासिर हो जाएं, आप नमूना बन जाएं, इसके लिए आपको तालीम की जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई करेंगे, आपकी जो पुरानी ज़िंदगी आपके माँ बाप गुजार रहे हैं वो सब ख़त्म कर देंगे। कौन? सिर्फ आप लोग करेंगे। और वो कैसे होगा? सिर्फ एजुकेशन से होगा, तालीम से होगा। तो आप लोग इंशाअल्लाह ये इरादा करते हैं और करती हैं बच्चियां भी कि हम सब पढ़ाई करेंगे ना इंशाअल्लाह विदाउट एब्सेंट, बगैर नागा के। मैं अक़लियती फलाह इंस्टीट्यूट में और जहाँ स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ भी जाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और फिर मुसलमान बनकर और मुसलमान बच्ची और बच्चा बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर जिस पोस्ट पे जाएंगे लोग मुतासिर होंगे कि अरे देखो अब्दुल्ला ऐसा है, ये एक इंजीनियर है, ये एक डॉक्टर है, ये एक प्रोफेसर है, ये एक लेक्चरर है और ये जो है ईमानदार है। फिर जो है आज हॉस्पिटल में दर दर भटकते हैं ना हमारे घर वाले, हमारे दादा दादी को लेकर, क्या कि भाई जरा देख लो, और फिर अंत में जो है आखिरकार फाइनली क्या होता है, मौत आ जाती है। तो मैं ऐसा डॉक्टर ईमानदार बनूंगा कि वहाँ पे कोई भी मजबूर आए जो मैं जिसका फटाक से इलाज कर पाऊँ, और मैं उसकी पढ़ाई, आप आगे चल के प्रोफेसर लेक्चरर बनेंगे तो आप दूसरे बच्चों को तालीम दे सकेंगे, जिससे पूरी दुनिया में नाम रोशन होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला सब करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। थैंक यू। A flag doesn't fly because of the wind. It flies
because of every breath of a dying soldier. Now I would like to call Kashfi on stage to deliver her speech. Give her a huge round of applause. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Respected parents, teachers, and all my dear friends, wishing you all good morning. Me Kashfi from Basic 3 is standing here in front of you all on the occasion 79th Independence Day. Today we will remember our freedom fighter who sacrificed their lives for the independence of India. Because of their sacrifice, we are here living freely in a secular country. Today, I will play the role of the famous freedom fighter आबादी बानो बेगम. मेरा नाम आबादी बानो बेगम है और मुझे बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है. मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती रह चुकी हूँ. मैं एक रूढ़िवादी मुस्लिम महिला थी जो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ली और ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख आवाज़ रह चुकी हूँ और मैंने अपने बेटों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया. बुर्का पहनकर सार्वजनिक रूप से भाषण देने वाली पहली भारतीय महिला बनी. मैंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और इसे भारत की दो आंखें कही. मैंने भारतीय मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित किया और खिलाफत और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से बच्चों को आधुनिक शिक्षा को प्राथमिकता दी और शिक्षा के महत्व को समझा. मेरा निधन 13 नवंबर को हुआ, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लेते हैं. शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लेते हैं, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी नदिया के किनारे. Now I would like to call Fazal sir for his speech. Please give him a big round of applause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to talk about a great Indian freedom fighter of India, a brave Indian freedom fighter of our community. Many of us here sitting here even don't know his name. In fact, many Muslims in India are unaware of his sacrifices for the freedom of our country. The legendary freedom fighter I am talking about is Asif Ali. Asif Ali was born on 11th May 1888 in Delhi. He completed his law from London and returned to India in 1914. After he came to India, he participated in many nationalist movements in India. He also participated in famous nationalist movement, the Quit India movement led by Gandhiji. He was a brilliant lawyer and a passionate nationalist. As we know, he was a lawyer. He defended Bhagat Singh and Bhutkeshwar Dutt in British court, who were accused of throwing bomb in Central Legislative Assembly. Due to his participation and huge support in nationalist movement and freedom movement in India, he was imprisoned by the British government many times. But the walls of prison could not break his spirit. And with the same courage, same faith, same belief, he fought for the freedom of our country until the last we get freedom. And after the freedom, he was the first Indian ambassador to the United States. Later, he was elected as governor of Odisha. Further, he died on 2nd April 1953, working as ambassador in Switzerland, Indian ambassador in Switzerland. This is all the story of Asif Ali, but what does the story teach us?
The story teaches us that Asif Ali, a man without any weapon, without any arms, stand against the harsh British government, harsh rule, and fought for the freedom of our country. The thing which led him stand against the Britishers and their harsh rule was his education, his courage, his faith. We should regret that we are unaware of such a great personality of our community. The problem with us that we don't read our history. We don't remember our history. This is a request to all that read your history, remember your history, save your history before the history gets changed. Thank you. That's all from me. लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी. Now I would like to call our faculty in charge, Zad sir, to address and speak about independence of India. Please welcome him. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है. जो ग़ुलाम है उसे पता होता है कि आज़ादी कहते किसके है. ग़ुलाम हफ़शी से पूछा जाए कि आज़ाद कौन है और ग़ुलाम कौन है, तो वो कहेंगे जब अल्लाह के नबी के दौर में इन पे जुल्म ढाया जा रहा था, वो दौर जब आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई आज़ादी एक बहुत बड़े तोहफ़ा का नाम है जो अल्लाह ने हमें दिया है. ये आज़ादी ऐसी ही नहीं हमें मिल गई है. आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों ने क्या किया. आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया. हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आज इस ज़मीन के नीचे भी अगर आप खोद कर देखिएगा तो हमारे उलमा और हमारे शहीदों का खून यहाँ से भी मिल जाएगा आपको. हमारे उलमा ने ऐसी कुर्बानी दी है. अगर हम इस तारीख़ को याद करें, 1947 हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है. इससे आप 150 साल पहले चले जाइए. 150 साल 1803 में हज़रत मौलाना अबुल हसन ने और मौलाना अब्दुल निसात ने दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठकर ये फतवा लिखा है. इन लोगों ने दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठकर ये फतवा लिखा है 1803 में, यानी कि हमारे आज़ादी से लगभग 150 साल पहले ये फतवा लिखा कि ये मुल्क अब दारुल हर्ब बन गया है. हर एक मुसलमान के लिए ये जिहाद, अंग्रेज़ों से जिहाद करना फ़र्ज़ ऐन हो चुका है. ये 1803 से लेकर के 1857 में ये पहला हमारा मुल्क ने पहला जो इज्तिमाई अंग्रेजों के खिलाफ जो रोड पर आए वो 1857 में. ये 50 साल और जो पहला हमारा आज़ादी मिला 1947 में, ये पूरा 150 साल अगर आप तारीख को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे उलमा की कैसी कुर्बानी है. ये तहरीक खिलाफत देख लीजिए, तहरीक रुमाल देख लीजिए, तहरीक हिंदुस्तान छोड़ो देख लीजिए, तहरीक बालाकोट देख लीजिए. इन सारी तहरीक में हमारे उलमा ने आगे आकर के हिस्सा लिया है. हर एक अंग्रेज का गले के कांटा बन गए थे हमारे उलमा. ये कहते थे कि इनको हटाएं तो हम कुछ करें. हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं. इनको हटाने के लिए उन्होंने काले पानी का सजा हमारे उलमा को सुनाया. इन्होंने अंडमान एंड निकोबार के जेल में हमारे उलमा को भेज दिया. इन्होंने क्या कहते हैं काले पानी की सजा सुनाया. और भी इतने जुल्म किए कि हम बता भी नहीं सकते. ऐसे जुल्म किया हमारे उलमा पे कि कहा जाता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के आज के खैबर, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों है, खैबर तक के हर एक पेड़ में हमारे उलमा को फांसी दे दिया गया. माहिरीन कहते हैं कि 14,000 उलमा को उस 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर फांसी दे दिया गया. 14,000 उलमा इकराम को उन 3 से 4 दिनों में फांसी दिया गया. ये बात मैं करके अपनी बात को और ये पूरे इजलास को ख़त्म कर रहा हूँ कि अपनी हिस्ट्री को पढ़िए. आप पढ़िए कि हमारे उलमा ने किया क्या है. नहीं तो होगा क्या, आप बड़े होंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे उलमा ने क्या किया और मुसलमानों ने क्या किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा. तो आप सबसे ये गुजारिश है कि हमारे हिस्ट्री को, हमारे उलमा की कुर्बानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और ऐसे ऐसे जो भी डोमिनेंट फिगर है, इन सब की कुर्बानी को पढ़िए, क्योंकि यही वो मौका है. अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी कुर्बानी भुला दी जाएगी. जज़ाकल्लाहु खैर.
नूरुल इस्लाम सर प्लीज आइए। इधर देखिए। अफान सर आप फिर आ जाइए। मेडल दीजिए। सर आप रुकिए अभी। यूसुफ बुला रहे बहुत सारा बच्चा है इसलिए थोड़ा सा मेडल कौन है इसके लिए? मेडल नहीं है, मेडल वाला लाइए और नहीं है। और मेडल कौन देता है? हाँ अब हो गया। Now I would like to call from Basic 4 Zahra, Zareen and Shifa. And Safiullah sir please अब आप आ जाइए। Zahra, Zareen and Shifa from Basic 4. लाइन से मतलब अरेंज होगा, लाइन से अरेंज होगा। उधर देखिए सर, उधर देख लीजिए। ये ज़रीन एंड शिफा जाइए। कश्फी आ जाओ, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। सर्टिफिकेट दिए, सर्टिफिकेट दिए। शाइना एंड अलीजा शाइना जावेद सर आ जाइए। मेडल नहीं है, पार्टिसिपेशन के लिए। सानिया फ्रॉम बेसिक 3 आ जाओ। इमरान सर आ जाइए। इसका मेडल है, बड़ा वाला। और है बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं आए। शिफा शिफा आ जाओ बाबू। फजल सर आ जाइए। दीजिए इसका मेडल दीजिए। ये छोटी बच्ची है। एक और नहीं है, कोई है ही नहीं टॉपर। कुलसुम जोने भाई है, फीफा ही है, फीफा अफीफा ही है, अफीफा अफीफा ऐसे छोड़िए। तो सबका हो गया। अरमान भाई आप आ जाइए, आ जाइए। तौकीर सर आ जाइए आप। सब करने पर नाम सिर्फ सर्टिफिकेट। कुलसुम आइए। अलीशान सर अब आप आ जाइए, आ जाइए।
गुलनाज, जैद सर अब आप आ जाइए। जैद सर आ जाइए। सब ले ले। नहीं इसको सुमैया और साहिल साहिल फैजान आ जाओ, सर्टिफिकेट लेकर आओ। आइए सर, आप आइए। सर को तो मेडल आप छोड़ दीजिए। नहीं जी है बच्चा को नाम है आहिल फ्रॉम बेसिक 1। आप किसको रुक जा सर, आ जाइए सर। नाम हमको याद नहीं है इसलिए माफ कीजिएगा। छोड़ दीजिए, कोई नहीं है। बाकी बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं एंड द ओवरऑल विनर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन कहकशा एंड अंतीजा, दे आर आल्सो एब्सेंट। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन बस यहीं तक था। फैज सर आ जाइए दुआ के लिए यहीं पर। अच्छा भाई इंशा फ्रॉम बेसिक 4। इंशा, सुमैया मेडल बस इसका सुमैया का मेरा नहीं दीजिए, मत दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। खुशनुमा आइए सर। सुमैया नहीं इसका दे दीजिए। 1 मिनट। सुमैया फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है इसलिए। खुशनुमा कौन? कहकशा जैस्मीन फ्रॉम बेसिक 4। आइए फैज सर, आइए। तौसिफ सर आइए। पार्टिसिपेशन है, देखिए ना, तो पढ़ नहीं लिया था। नाम क्या है? जैस्मीन कहकशा। आज बड़ी अच्छी बात है। सकलैन भाई को मैं बैठा जगह वहाँ पे बैठिए। देखिए बड़ी अच्छी बात है आज काची, हाँ, सकलैन भाई और सैफुल्ला सर जो है अपने इदारे से यहाँ आए हैं। एक वक्त था कि इसी इदारे से सारी लोगों की वाबस्तगी थी। हकीकत है, हकीकत तारीख के पन्नों में रकम होती है, कोई उसको लिखता नहीं है ना। तो अपने आप में एक वज़ेदारी है और ये सच्चाई है। आपका आना हमारे लिए बाइस शर्फ है। हम अब जो है तंजीम के बहैसियत ये ऐलान कर रहे हैं कि आपका हमारा आने लिए बाइस शर्फ है। और जितनी तरीके की जो कन्फ्यूज़न मार्केट के अंदर गर्दिश जो है कर रही है, ये इस बात की दलील है। हम भी गए थे इनके इदारे में, आज ही भी आए हैं, तो अब सारी कन्फ्यूज़न जो है ख़त्म हो चुकी है। तमाम लोगों को अपना इदारा वजहदारी के साथ और थानाई के साथ अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। और जो कन्फ्यूज़न थी वो सब ख़त्म हो चुकी है, कोई ऐसी कन्फ्यूज़न नहीं है। आप फैज़ भाई दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम,
मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना रब्बना व इलैकल मसीर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हम सबको यहाँ पे जमा होना बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सबके उलमाओ इकराम की क़ुरबानी को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सबके बच्चों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सबको पूरी दुनिया में दीन की मेहनत और दावत की मेहनत और तालीम की ज़िम्मेदारी को लेकर पूरी दुनिया में फिरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों को दीनदार बना। ए अल्लाह हमारे घरों को तालीम याफ्ता बना। ए अल्लाह हमारे बच्चियों को दीनदार बना। ए अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना। ए अल्लाह हमारे घरों से और पूरे इस गया डिस्ट्रिक्ट से बल्कि पूरी दुनिया से जिहालत को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह सारे लोगों को तालीम याफ्ता बना। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सबको जो जिस तंजीम से खुसूसन तालीम की ऑर्गेनाइजेशन से फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, ए अल्लाह सबको मेहनत के साथ डेडिकेशन के साथ ए अल्लाह इस खिदमत को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब मेहनत करने वाले हैं, कामयाब तो आप ही करने वाले हैं। ए अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमा और पूरी दुनिया के लिए हमें कामयाबी का नमूना बना। ए अल्लाह हम सब के हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे नौजवानों को ए अल्लाह सबको कामयाब फरमा। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं, जो इधर उधर नौजवान हमारे फिर रहे हैं, ए अल्लाह उन नौजवानों को सही रुख पे लेते आइए। ए अल्लाह उन नौजवानों को दीनदार बनाइए। ए अल्लाह उन नौजवानों को कामयाबी अता फरमाइए। ए अल्लाह इस अक़लियती फ़लाह को और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, ए अल्लाह इन सब को अल्लाह फलाह व बहबूद तक पहुँचा दीजिए। ए अल्लाह इनमें काम करने वालों को इखलास के साथ, इस्तखलास के साथ, इस्तकामत के साथ, ए अल्लाह मजबूती के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और जितने बच्चे यहाँ पे हैं सब मासूम बच्चे और बच्चियाँ हैं, ए अल्लाह इन सब की ज़िंदगियों को संवार दीजिए। ए अल्लाह इन सब बच्चियों की आने वाली ज़िंदगी को ए अल्लाह बना दीजिए और अपने महल्ले, अपने घर, अपने इलाके, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए नमूना बना दीजिए। जिस तरीक़े से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन मेहनत किए और पूरी दुनिया में अल्लाह आपने नमूना बना दिया, ऐसे ही हम सब को और हमारे बच्चों को और यहाँ खुसूसन आने वालों को पूरी दुनिया का नमूना बना दीजिए। ए अल्लाह इन तमाम दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ।